Hey guys, welcome to NCERT Solution, Subject English, Class 9th. Chapter 1 poem The Road Not Taken is written by Robert Frost. Let's discuss few topics like about the poem, about the author, summary, theme, message, literary devices, rhyme scheme. So these all topics we will discuss in this video. This is my second video of chapter number 1 poem The Road Not Taken. First video I have uploaded of chapter The Road Not Taken full explanation in Hindi. So let's move to the topic. Number 1 is about the poem. First published in 1916 The Road Not Taken. अब यहाँ पे जो रोड नॉट टेकन पोइम है ये पब्लिश्ड कब हुई थी 1916 में. Shows Frost at his best as a pastoral who combines rustic simplicity with hidden, indirect and clarity of style and language. Now let's discuss about the author. Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. ये रॉबर्ट ली फोस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है. His work was initially published in England before it was published in America. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Frost was honored frequently during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for Poetry. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसको निकनेम में ज़्यादातर लोग फ्रॉस्ट के नाम से बोलते थे. So this is the Robert Frost. So now let's study about summary part of the poem The Road Not Taken. This poem talks about the choices one has to make in life and their consequences. ये पोएम हमें बताती है कि किसी के लाइफ में choices क्या होते हैं और उनके consequences क्या होते हैं. One day while walking in a wooded area full of trees, the poet comes to a place where he has to decide which road he should take. एक दिन चलते चलते वो जो हमारे ऑथर हैं वो एक wooded एरिया में आए जहाँ पे वो एरिया जो था वो ट्री से भरा हुआ था और येलो वुड थी. द पोएट जो था वो ऐसी प्लेस पे आ गया जहाँ पे उसको डिसाइड करना पड़ रहा था कि वो कौन सा रोड जो है वो ले. ही स्टार्ट्स डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस एज ही रियलाइजेस ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ. वो सोचता बहुत है और वो इसको ये रियलाइज़ होता है कि वो दोनों पे तो चल नहीं सकता बिकॉज वो एक ही यात्रा करने वाला है. However, he decided to take the second path. जैसे तैसे उसने दूसरा पाथ चुना with the intention of traveling on the first some other time in future. और उसने क्या सोचा कि मैं फर्स्ट वाला जो है वो फिर से कभी आऊँगा और फर्स्ट वाले पे भी मैं इस रोड पे ट्रेवल करूँगा. तो ये थी हमारी समरी ऑफ द पोइम. अब चलते हैं थीम ऑफ द पोइम में. द थीम ऑफ द रोड नॉट टेकन इज डिसीजन. द रोड नॉट टेकन जो पोइम है इसका थीम क्या है? डिसीजन. द थीम इज डिसीजन. थीम डिसीजन है बिकॉज इफ समवन वांट्स द इजी वे आउट ऑफ dilemmas, then he or she will take the path that most traveled by. If someone wants success, अगर किसी को success चाहिए, then he or she will take the path that less traveled. और वो कौन सा पाथ चूज़ करेगा जो लेस ट्रेवलेड किया गया. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और इसी से ही जो है वो ज़्यादातर डिफरेंस बनता है. तो ये थी हमारी थीम ऑफ द पोइम में. अब हम चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के पे. लिटरेसी डिवाइसेस यूज इन द पोइम. नंबर 1 मेटाफोर. देयर आर मेनी मेटाफोर इन द पोइम लाइक रोड, फॉक इन द रोड एंड येलो वुड्स. द रोड इन द पोइम इज द मेटाफोर ऑफ लाइफ. मेटाफर ऑफ लाइफ. जो रोड जो है वो किसके लिए इस पोइम में जो रोड बताया गया है वो किसके लिए लाइफ का मेटाफर है. वाइल द फॉक ऑन द रोड मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स द चॉइसेस वी मेक टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ आवर लाइफ्स. Similarly,
Jello woods are the metaphor of making decisions during the hard times of a person's life. These metaphors used in this poem emphasize the importance of different decisions we make in different situations and their impacts on our lives. Second number is imagery. Imagery is used to make the readers feel things through their five senses. Imaginary क्या है? ये किसी रीडर्स को चीज़ें फील्स करने के लिए होता है, पांच सेंसेस के लिए. The poet had used images of the sense of sight such as leaves, jello woods, and these images help readers to actually perceive things they are reading. The image of the road helps readers to visualize the road, providing a navigation route to the traveler. तो ये है हमारी imagery. Number third, simile. A simile is a device used to compare things with familiar things to let the readers. Simile एक ऐसा डिवाइस है जो एक दूसरी चीज़ों को कंपेयर्स करता है, ठीक है, टू दी लेट टू दी रीडर्स. नो इट ईजिली. देर इज़ वन simile यूज्ड इन द सेकेंड स्टेंजा. तो यहाँ पे एक स्माइली जो है, स्मीली बोलते हैं उसको, सेकेंड स्टेंजा में यूज़ की गई है. जैसे एज यस्ट एज फेयर, सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में. देन टुक द अदर यस्ट एज फेयर. एज यस्ट एज फेयर, it shows how the poet has linked the road less taken to the easy way through life. यहाँ पे क्या शो किया जाता है कि पोइट ने कैसे लिंक्ड किया गया है कि लेस टेकन टू द ईजी वे, हमारी लाइफ से क्या ईजी वे है, ठीक है. नंबर 4 आता है assonance. Assonance, the repetition of vowel sounds such as the sound of a and o in quick succession in do as far that the passing and in some verses and ages hence. तो ये जो assonance है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ए की और ओ की. ये यूज़ किया गया है फोर्थ स्टेंजा में. अगर आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा की सेकेंड लाइन में समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो वहाँ पे ये assonance वर्ड जो है, assonance हमारी जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज़ की गई है. और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ए और ओ, जहाँ पे ए और ओ होते हैं, ठीक है. समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, ठीक है. तो फिफ्थ नंबर में आती है हमारी कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज डी इन टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ जेलो वुड. तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? यहाँ पे साउंड्स किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है? डी की. रेपिटेशन किसकी होती है? डी की. जैसे बताया गया था, टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ जेलो वुड. नंबर पहला जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन में टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ जेलो वुड एंड टी साउंड इन दो एज फार एज द पासिंग देयर. और टी साउंड किस में प्रोड्यूस की गई है? दो एज फार एज द पासिंग देयर में. ओके, लास्ट है आपकी पर्सोनिफिकेशन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज personified road in the third line of the second stanza. Second stanza की third line में because it was grassy and wanted wear. Here it is stated because it was grassy and wanted wear, as if the road is human and that it wants to wear and tear. तो ये थी हमारी 6 personifications. यूज़ की गई है The Road Not Taken चैप्टर में. ओके, तो हमारी लिटरेरी डिवाइसेस जो है इस पोइम की कंप्लीट हो चुकी है. अब हमारे लास्ट टॉपिक बचा है राइम स्कीम. तो चलो राइम स्कीम देख लेते हैं इस पोइम की. दिस ऑल आर कंप्लीटेड, ओनली लेफ्ट पार्ट इज राइम स्कीम. ओके, राइम स्कीम. टू रोड्स diverge in a jello wood. I'm sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the underground. बेटा जब भी अगर हम राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम जब भी आपने देखनी होती है, राइम स्कीम लाइक ए बी सी डी है ना, वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे अगर आप राइम स्कीम को देखोगे तो कैसे देखोगे? ये देखो, ये आपको अच्छी तरह नोटिस करना है कि जब भी राइम स्कीम देखनी है तो आप सबसे पहले लास्ट वर्ड्स जितने भी है पैराग्राफ उसके लास्ट वर्ड्स देखिए. यहाँ पे पुट, बोथ, स्टूड, कुड,
अंडरग्राउंड। ये हमारे लास्ट वर्ड्स हैं फर्स्ट पैराग्राफ के। अब यहाँ पे मैचिंग्स देखो कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं। वुड स्टूड मैच हो रही है, वुड स्टूड मैच हो रही है, ठीक है। अब वुड स्टूड कुड ये भी मैच हो रहा है, कुड भी मैच हो रहा है, ठीक है ना। डी डी वुड स्टूड कुड ये तीनों मैच हो रही हैं। देन बोथ अंडर ग्रोथ ये दो मैच हो रही है, टी एच। तो मतलब यहाँ पे वुड स्टूड कुड ये हमने क्या मान लिया, ए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए। अब बोथ अंडर ग्रोथ ये हमारा आ गया वी, ठीक है। अब ऐसे ही राइम स्कीम इन दिस पोइम जो है वो क्या है, ए बी एंड कंटिन्यूज दैट वे थ्रू आउट द पोइम। तो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ की आप सोच रहे होंगे बेटा जो जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सब की राइम स्कीम ए बी है। तो चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखो ये रही हमारी पोइम, फर्स्ट हो गया हमारा। अब देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। यहाँ पे फेयर आया, नेक्स्ट क्लेम वियर देयर सेम। अब यहाँ पे देखो, लेट मी चेंज द मार्कर। हाँ, फेयर वियर आर फेयर वियर मीन्स ए, फेयर वियर ये दोनों सेम है। अब देयर फेयर वियर देयर तो ये भी सेम है, तो यहाँ पे भी ए आएगा। मतलब ये तीनों हमारे वर्ड सेम आ रहे हैं तो ये ए बन के। अब हम बी ढूंढेंगे, क्लेम सेम तो ये हमारा आ गया बी क्लेम सेम। वर्ड्स हो रहे हैं मैच। अब देख लेते हैं ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ में, ले ब्लैक डे वे बैक ये हमारे वर्ड्स हैं। ले ब्लैक नहीं मिलेगा, एक वर्ड को जोड़ो पहले, ले डे या तो ए लिख दीजिए, ठीक है। अब ले वे या ले बैक नो। अब ब्लैक डे नो, वैसे भी हो गया, ब्लैक वे नो, ब्लैक बैक या, है ना, ब्लैक बैक बी। तो क्या है यहाँ पे सेम आ रहे हैं ए बी। अब लास्ट पैराग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। साई हेंस बाय एंड आई डिफरेंस। अब देखो साई हैंड्स नहीं होगा, साई आई, यहाँ पे सिर्फ आई है, नोटिस इट्स आई लास्ट वर्ड, बाय डिफरेंस साई आई, है ना, मैच हो रहा है साई आई मतलब ए, साई आई बाय ए इट्स मैचिंग ना, तो ए आ गया, साई आई बाय ए हेंस डिफरेंस ENC मतलब बी, ठीक है। आगे समझ। तो ये हमारे क्या थे, राइम स्कीम। तो जैसे कि हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, 7 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मेरे लेटेस्ट न्यू वीडियोस को देखने के लिए। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।